चालू है। से जवाब नहीं आया, मगर ये कि अभी ऑनलाइन हो गए। हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह फातिहा। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदि अस्लिम मा फिल वजूद। सिर्रिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद। नुक़्तते दायरतिल वजूद। साहिबी लवाइल हम्दे वल मक़ामिल महमूद। अल ख़ातिमु लिमा सबक़ वल फ़ातिहु लिमन अलक़। अल मौलानिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अलैहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ाल अल्लाहु हक़। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। तमाम हम्द व सना व सताइश उस खुदावंद करीम के लिए, उस ज़ात वाजिब के लिए, उस ज़ात मुतलक के लिए जो कि ज़ात वाजिब है, जिसका सजदा हर शह पर वाजिब है, जिसने रहमतों से नेमतों से दुनिया को सजाया है। वो खुदावंद करीम सूरह बकरा की दूसरी आयत में इरशाद फरमा रहा है हुदल लिल मुत्तक़ीन, यानी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। तो अज़ीज़ान महतरम, खुदावंद करीम इरशाद फरमा रहा है कि ये वो किताब है कि जिसमें कोई शक नहीं,
اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے عزیزان محترم، کیا مسلمانوں کے لیے کتاب ہدایت نہیں؟ کیا امت رسول کے لیے یہ کتاب ہدایت نہیں؟ فقط متقین کے لیے ہدایت اللہ آواز دے رہا ہے، تو اس سے زیادہ اور کس کا کلام دنیا کے لیے ثبوت ہوگا کہ خود خدا کہہ رہا ہے کہ ہدایت متقین کی کرنے والا ہے یہ کتاب۔ تو عزیزان محترم، آئیے ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ کس طرح خدا نے متقین کے لیے ہدایت اس کتاب کو قرار دیا ہے۔ چھوٹا سا ایک مثال، فار ایگزامپل کہ ایک میری فرینڈ ہے، اسے بہت تیز بخار آ گیا، فیور آ گیا۔ اب جب فیور میں وہ بہت زیادہ جل رہی تھی، بہت زیادہ پریشان تھی، ڈاکٹر کے پاس گئی، دوائی لے کر آئی۔ جب دوائی لے کر آئی تو اللہ نے اسے شفا دے دی، شفا دی۔ اس کے تیسرے چوتھے دن مجھے بخار آ گیا، مجھے فیور آ گیا۔ میں نے اس سے کنسلٹ کیا کہ تم کس ڈاکٹر کے پاس گئی تھی؟ اس ڈاکٹر سے مجھے بھی کنسلٹ کرواؤ، اس ڈاکٹر کا ایڈریس مجھے بھی دو۔ اس نے کہا فلاں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، اس نے مجھے ایڈریس دیا، میں ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر نے مجھے دوائی دی اور کہا کہ آپ یہ 3 ٹائم دوائی کھائیے گا اور چند پرہیز کریے گا، ٹھنڈا پانی نہیں پینا ہے آپ کو، آئس کریم نہیں کھانا ہے، اور کوئی کولڈ چیز آپ کو نہیں یوز کرنی ہے جس سے آپ کو جلدی فیور اتر جائے گا۔ سپوز فار ایگزامپل میں گھر آئی اور میں نے دوائی رکھ دی، دوائی کھائی نہیں، 3 دن تک میرا بخار اترا نہیں۔ میں نے سوچا یہ کیسا ڈاکٹر ہے جو مجھے دوائی دیا لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے ایسی دوا دی جس سے مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ نے دوائی کھائی تھی؟ میں نے کہا نہیں، میں نے دوائی تو نہیں کھائی۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آیا جب آپ نے دوائی کھائی نہیں تو مجھ پر الزام دینے کا مقصد کیا ہے؟ مجھ پر الزام لگانے کا مقصد کیا ہے؟ اس میں میری کیا خطا؟ آپ نے دوائی نہیں کھائی، اثر آپ کو نہیں کی۔ جب تک آپ دوائی نہیں کھائیں گی ٹائم ٹو ٹائم تو آپ کو اثر کیسے کرے گی؟ تو عزیزان محترم، اسی طرح ایک جملہ میرے دل میں آتا ہے کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ انسان قرآن کو جزدان میں لپیٹ کر گھر میں تو رکھ دے گا لیکن اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، اسے کبھی پڑھے گا نہیں، اسے کہیں سمجھے گا نہیں، اس پر کبھی ایمان نہیں لائے گا، تو وہ ہدایت کیسے کرے گا؟ پھر میں گھر چلی گئی، میں گھر آئی، میں نے دوا کھائی، پھر بھی بخار نہیں اترا۔ جب بخار نہیں اترا پھر میں واپس گئی، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اب تو میں نے دوا بھی کھائی، ٹائم ٹو ٹائم کھائی۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے پرہیز کیا؟ جس پرہیز سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ٹھنڈا نہیں کھانا ہے، آئس کریم نہیں کھانا ہے، دہی نہیں کھانا ہے، ایکسیٹرا جو بھی ڈاکٹرز دیتے ہیں صلاح، وہ سب اس نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا، تو آپ نے کھایا یا نہیں کھایا؟ آپ نے پرہیز کیا یا نہیں کیا؟ تو میں کہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب دوا تو میں نے برابر ٹائم پہ لی لیکن میں نے پرہیز نہیں کیا۔ تو عزیزان محترم، یہاں ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے، ایک عام سی شفا کے لیے، ایک فیور کے لیے، ایک بخار کے لیے پرہیز کرنا، یعنی حتیٰ کہ جسم کے ہر مریض کے لیے، ہر مرض کے لیے شفا جو چاہتا ہے اسے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ تو یہ پرہیز جو جسم کو شفا دیتی ہے، جو روح کو پرہیزگاری شفا دے، تو عزیزان محترم قرآن کی طرف متوجہ ہو، بغیر پرہیزگاری کے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، بغیر تقوی و جوہد کے قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ پتہ یہ چلا کہ جو انسان ہدایت لینا چاہے قرآن سے، پہلے اسے تقوی اختیار کرنا پڑے گا، پرہیزگاری اختیار کرنی پڑے گی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں راہ راست پر لاتی ہے۔ اب میں امام جعفر صادق کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ اصول کافی جلد 2 میں یہ حدیث ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے خدا اس سے ہر چیز کو ڈراتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے خدا اسے ہر چیز سے ڈراتا ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ جس کے دل میں خوف الہی ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، خدا اس سے ہر چیز کو ڈراتا ہے۔ اب آپ دیکھیے عزیزان محترم، زمانے میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر حسد کا معدہ اتنا آ جاتا ہے کہ انہیں یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔
वो किसी पर बहतान लगाने लगते हैं, इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। लेकिन याद रखिए कि जिसके दिल में खौफ इलाही होगा वह ऐसे लोगों से कतन नहीं डरेंगे, क्योंकि उसके साथ अल्लाह की ताकत है, उसके साथ मासूमीन का साया है। तो अजीज़ान मोहतरम, जो तकवा रखता है, अल्लाह का खौफ, मौला क्या बता रहे हैं, अल्लाह से डरता हो, तो जो अल्लाह से डरता हो यकीनन वो तकवा रखता है। जिसके दिल में तकवा का एक गोशा भी, 1% भी जिसके दिल में तकवा होगा वो खुदा से यकीनन डरेगा। अजीज़ान महतरम, ये अगर जिसके पास तकवा नहीं, परहेज़गारी नहीं, उसे सबसे ज़्यादा काबू में शैतान करता है, इब्लीस करता है। आइए एक छोटा सा वाक़या आपको बताऊं कि एक मर्तबा जनाब याहिया बैठे हुए थे, याहिया नबी बैठे हुए थे। इब्लीस आया और आके कहने लगा, ऐ याहिया, मैं आपको कुछ नसीहत करना चाहता हूँ। याहिया ने कहा, तेरी नसीहत की मुझे ज़रूरत नहीं, अलबत्ता तू मुझे इंसानों की उस कैटेगरीज के बारे में बता जो तुझे पता है। उसने कहा, ऐ याहिया, इंसानों की 3 कैटेगरीज मेरे सामने है। पहली कैटेगरी, पहला तबका, वो तुम्हारी तरह मासूम, नमाजी, परहेज़गार, शुबह हराम से बचने वाले, कभी किसी गुनाह में मुश्तमिल नहीं होने वाले। मैं कोशिश करके थक जाता हूँ लेकिन कभी मैं तुम्हें काबू में नहीं पा सकता, यानी मैं तुम पर गलबा ला ही नहीं सकता। जितनी कोशिश करता हूँ मैं तुम्हारे तक पहुँच नहीं सकता, यानी तुम्हारे तरह के लोग मुझसे दूर हैं। दूसरा तबका, जो कि मेरे हाथ में गेंद के मानिंद है, जहाँ चाहूँ वहाँ लुढ़का लेता हूँ। तो अजीज़ान मोहतरम, जब इब्लीस के अंडर में कोई आ जाए तो उसके अंदर कई चीज़ें पाई जाती है, हसद, जलन, गीबत, बुराई, मोमिन को देखकर जलना, मोमिन की बुराई करना, मोमिन को सरेआम रुसवा करना, मोमिन के लिए इल्ज़ामात लगाना, मोमिन के लिए बहतान लगाना। ये शैतान के जद में आने वाले लोग हैं। शैतान खुद कह रहा है ना जनाब याहिया से कि दूसरे तबके के लोग, दूसरे कैटेगरीज के लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें मैं गेंद की तरह उछालता हूँ, जहाँ चाहूँ वही लुढ़का लेता हूँ। तो अजीज़ान मोहतरम, ऐसे इस्लाम में, ऐसे मुसलमान, ऐसे मोमिन का क्या फ़ायदा जो इब्लीस के अंडर में आ गए, जो इब्लीस के साथ देने लगे। अब अजीज़ान मोहतरम, यही इब्लीस है जो ऐसे लोगों को अपना टारगेट बनाकर लोगों की बुराई, रुसवाई, जलील और ख्वार करना, किसी को एक्सेट्रा, हर बुराई ऐसे ही लोग में पाई जाती है जो इब्लीस के हाथ का गेंद बना हुआ है, इब्लीस के हाथ का बॉल बना हुआ है। इस तरह उछालता है इब्लीस, जिस तरह वो चाहे उन्हें कठपुतली की तरह नचा लेता है, क्योंकि वो इब्लीस के हाथ में है। तीसरी कैटेगरी के लोग, शैतान खुद कहता है, याहिया, ये जो तीसरे किस्म के लोग होते हैं ना, ये हमें बहुत थका देते हैं, हमें इतना इन लोगों ने थका दिया है कि हम इनसे परेशान हो गए। याहिया ने पूछा, वो कैसे? कहा, वो ऐसे लोग होते हैं कि जिन्हें फंसाने में बहुत वक्त लगता है, फंसा तो लेते हैं, अपने गलबे में ले भी लेते हैं, वो हमारे पास आ भी जाते हैं, हमारी बात सुन भी लेते हैं, 2 कदम चलते हैं और चलते ही उनके दिल में खौफ इलाही आ जाता है। जैसे ही खौफ इलाही आता है वो लाहौल पढ़कर इस्तगफार कर लेते हैं, इस्तगफार करते ही हमारा गलबा उससे दूर हो जाता है। तो ऐसे लोग हमें बहुत आजिज़ करते हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, देखा आपने 3 कैटेगरीज के लोग। अब अपने आप को हम खुद सोचें कि हम किस कैटेगरीज में आते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, हम मासूम तो है नहीं कि हम मासूमीन की तरह पाको पाकीज़ा हो जाएंगे, लेकिन दूसरे कैटेगरीज में आने से पहले अपने आप को संभाल लीजिए, क्योंकि खुदावंद करीम कहता है कि मुत्तकी और परहेजगार के करीब कभी भी शैतान नहीं आता। तो अजीज़ान मोहतरम, तीसरी कैटेगरीज में आ जाएं तो ताकि शैतान हमसे थक जाए, हम शैतान से ना थके, हम शैतान के गलबे में ना आ जाएं, हम शैतान को अपने पे हावी ना होने दें। क्योंकि अजीज़ान मोहतरम, क्या होता है, हसद का माद्दा इतना बढ़ा देता है, इंसान को इतना ज़्यादा पागल कर देता है कि उसे ये
भी नहीं पता चलता है कि वो कमेंट्स में क्या लिख रहा है, आया किसी को मैसेज करके क्या कर रहा है, आया किसी पे इल्ज़ाम कैसे लगा रहा है। अगर रोज़े महशर खुदा उससे सवाल पूछ लेगा कि तूने किसी बंदे पर ये तान किससे पूछ कर लगाया था, गलबे में ले लिया था। आइए अजीज़ान महतरम, इस तीसरी कैटेगरीज में से एक कैटेगरीज की जो तीसरी कैटेगरीज है कि जो शैतान के जद में आ भी जाते हैं और खौफ इलाही आते ही शैतान पर लानत मलामत करके इस्तग़फ़ार भी कर लेते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आइए एक छोटा सा वाक़या आपके सामने पेश करूं कि ये जो तीसरी कैटेगरीज के लोग हैं, इससे कनेक्टेड ये वाक़या आपके समात के हवाले करती हूँ। मेरे पेश नज़र है जनाब जाफ़र सादिक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारे छठे मौला के एक सहाबी थे जिनका नाम था अबू बसीर। किताब का नाम है पंद तारीख़। इसमें यह वाक़या बहुत मशहूर किताब है और इस किताब में यह वाक़या मौजूद है कि जनाब अबू बसीर जो कि छठे इमाम जाफ़र सादिक के बहुत बेहतरीन सहाबी थे, इन्हें हत्ता के मौला उनसे बहुत ज़्यादा मानूस थे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। तारीख़ के जुमले हैं कि एक मर्तबा जनाब अबू बसीर फरमाते हैं कि मेरा नेबर्स था, मेरा पड़ोसी था, एक पड़ोसी मेरा हमसाया जो कि मेरे घर के बाजू में रहता था, बादशाह के बहुत ज़्यादा करीबी था, यानी बादशाह का एकदम मुंह बोला था, एकदम करीबी था, इतना करीब था कि उसने हराम से इतना माल कमा लिया था कि हद दर्जा उसके पास माल था। अबू बसीर फरमाते हैं कि उसके पास चंद कनीज़ें भी थीं जिनकी बहुत खुशगवार आवाज़ें थी। वो इसी का फ़ायदा उठाता, घर में गाना बजाना, म्यूज़िक, शराब और कबाब हमेशा उसके घर में होता। जनाब अबू बसीर कहते हैं कि मुझे बहुत दिल दुखता था। मैं जब भी उससे मिलता मैं कहता, है खुदा के बंदे तू ये क्या कर रहा है, क्या तुझे अल्लाह का खौफ नहीं? वो हमेशा मेरी बात को इग्नोर कर देता था। हत्ता कि एक दिन मैंने बहुत नसीहत की। अबू बसीर कहते हैं मैंने जब बहुत नसीहत की तो उसकी ज़बान से फ़कत ये निकला, ऐ अबू बसीर मुझे तो इबलीस ने असीर कर लिया है, मुझे तो इबलीस ने अपने जाल व फंदे में फंसा लिया है। तू तो अभी इबलीस के फंदे से आज़ाद है। तू अपने मौला से कहे कि मेरे हक़ में दुआ करे ताकि मुझे खुदा इस गुनाह से महफूज कर दे। उसने कहा ठीक है। अबू बसीर चंद दिनों बाद मदीना मुनव्वरा आए, छठे इमाम की खदमत में आए और आने के बाद फरमाया, मौला मेरा एक हमसाया, एक नेबर है, बहुत ज़्यादा गुनाहगार है मौला, बहुत ज़्यादा, यानी हत्ता कि उसके घर में म्यूज़िक, उसके घर में शराब खोरी, ज़िना आम है मौला। मौला ने फरमाया कि वो क्या चाहता है? अबू बसीर ने कहा, मौला उसने कहा है कि अपने इमाम से कहो कि मेरे हक़ में दुआ करे ताकि खुदा मुझे राह रास्त पर ले आए। मौला ने फरमाया कि आए अबू बसीर, जब तुम कूफा वापस जाओगे लोग तुमसे मिलने आएंगे, वो भी मिलने आएगा, उसे मेरी तरफ से एक मैसेज दे देना, उसे कहना कि जनाब जाफ़र इब्न मोहम्मद ने तुझे वादा किया है कि तुझे जन्नत में दर्जे दिलाएंगे और जन्नत की ज़मानत दूंगा। एक मर्तबा अबू बसीर वापस आए, मौला का कलाम था इसीलिए सब मिलने आए। मौला का कौल नाउज़ुबिल्लाह कभी क़ता हो ही नहीं सकता, ख़त्म हो ही नहीं सकता। सब मिलने आए, उसमें वो भी मौजूद था नेबर। जब सब मिल के चले गए तो जनाब अबू बसीर ने कहा, ऐ शख्स खुदा ने तेरी दुआ को कबूल किया, तू अगर सिद्क़े दिल से तौबा कर रहा है तो हमारा मौला फरमाता है, छठा इमाम जाफ़र सादिक फरमाता है कि तुझे जन्नत की ज़मानत है। उसने कहा, अबू बसीर खाओ तुम खुदा की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में हर शय की जान है, क्या आपके मौला ने यही जुमला कहा है? अबू बसीर ने कहा, मुझे उस खुदा की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, यकीनन मेरे मौला ने यही जुमला कहा है कि हाँ अबू बसीर जाके कह देना अपने उस पड़ोसी से कि अगर तुम सिद्क़े दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करोगे तो जाफ़र सादिक, जाफ़र इब्न मोहम्मद तुम्हें वादा करता है कि जन्नत की ज़मानत है। एक मर्तबा वो शख्स वहीं से उठा
उसने तौबा इस्तग़फ़ार करना शुरू किया। चंद दिन के बाद अबू बसीर कहते हैं कि उसने मेरे पास मैसेज भिजवाया। जब मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि वो अपने दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। मैंने कहा, ऐ बंदा खुदा, सामने क्यों नहीं आते हो? उसने कहा, अबू बसीर, मैं सामने कैसे आऊँ, मैं बरहना हूँ, मैंने कपड़े नहीं पहन रखे हैं। अबू बसीर ने कहा, तुम्हारे कपड़े क्या हुए? कहा, जो मैंने लूटा खसोटा था ज़माने को, जो हराम पैसा मेरे पास था, मैंने सब के सब वापस कर दिया, हत्ता कि मेरे पास पहनने को कपड़ा भी नहीं है। अबू बसीर कहते हैं, मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पहनने का भी इंतज़ाम कराता हूँ और तुम्हारे ताम का, तुम्हारे खाने का भी इंतज़ाम करता हूँ। अबू बसीर कहते हैं कि मैं चला और मैंने उसे जल्दी ही लाकर एक कपड़ा दिया और खाने का इंतज़ाम किया। चंद दिन बाद उसका फिर मैसेज आया और जैसे ही मैसेज आया तो मैंने देखा कि वो मर्गे बिस्तर पर है और कह रहा है, अबू बसीर, लगता है अब मैं बचूंगा नहीं। जैसे ही उसने ये जुमला कहा, डर के मारे वो बेहोश हो गया। जब होश में आया तो उसने कहा, क्या है अबू बसीर, तुम्हारे मौला का वादा पूरा हुआ, उन्होंने मुझे जन्नत दिखा दी है। अब बस ये कहकर उसने मौत की आखिरी हिचकी ली और दुनिया से रुखसत हुआ। तो अजीज़ाने मोहतरम, फिर जैसे ही अबू बसीर उसी साल हज पर गए तो मौला के पास आए। मौला ने मुस्कुरा कर कहा, अबू बसीर, तुम्हारे मौला ने वादा पूरा कर दिया। अब अजीज़ाने मोहतरम, इस वाक़े से बस दो ही चीज़ मालूम पड़ती है कि जो राह खुदा में सिदक़े दिल से माफ़ी मांग कर मोमिन बन जाए, खुदा उसे दुनिया में उसकी जन्नत बता देता है। दूसरा कि जो इंसान गुनाहों से मुत्तकी और परहेज़गार बन जाए, गुनाहों को छोड़ दे, इस्तग़फ़ार पढ़ ले, क्योंकि वो माबूद रहीम और करीम है जो तौबा का दर खोले हुए हैं, जिससे अल्लाह राज़ी होते हैं, उससे मासूमीन राज़ी होते हैं। इसीलिए छठे इमाम ने फरमाया कि जाके जन्नत की ज़मानत दे दो। तो अब अज़ीज़ाने मोहतरम, एक जुमला कहना चाहती हूँ कि अबू बसीर का वो नेबर जिसके दिल में मार्फत इमाम नहीं था, लेकिन उसने ये जुमला कहा कि जाके अपने मौला से कहो कि मेरे हक में दुआ करे, खुदा मुझे राह रास्त पर लाए। अब अजीज़ाने मोहतरम, अपना हाल हम सोचें कि जिनका मौला जिंदा है, पर्दा ग़ैबत में है, आज भी उनकी मार्फत हमसे दूर है, क्योंकि हमने मार्फत इमाम ज़माना कभी हासिल करने की कोशिश की ही नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस अजीज़ाने मोहतरम, मैंने इस रहमत के पल को ख़त्म किया। चंद जुमले मसाइब जो कि माले मजलिस है। अज़ादारो, जब भी इमाम सैयद सज्जाद से पूछा गया, मौला सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आपको कहाँ हुई, मेरे इमाम ने कहा, अश्शाम अश्शाम अश्शाम। अज़ादारों, किसी ने पूछ लिया, मेरा मौला शाम में ऐसा क्या हुआ? मौला ने फरमाया, मैं दरबार यजीद नहीं भूल सकता। लोगों ने कहा, मौला दरबार यजीद में क्या हुआ? मौला फरमाते हैं, अरे एक रसन था, 18 गले थे। मौला सज्जाद फरमाते हैं, लोगों, सज्जाद की कमर झुक गई थी, इसीलिए कि मैं कभी उठकर खड़ा ना हुआ। जब भी मैं खड़ा होता था तो कभी मुझे सकीना का ख्याल आता था, कभी मोहम्मद बाकर का ख्याल आता था। मौला फरमाते, दरबार यजीद सजा हुआ था, अरे शराबी बैठे हुए थे। अज़ादारों में एक जुमला इमाम ज़माना के
الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. اللہم صلی علی محمد.